So whosoever is listening to this interview, this is not another AIR interview. If you miss it out, you miss it out. I mean it. So Keshav, AIR 5 from Mumbai, he messaged me that sir, जो भी AIR के interviews होते हैं, AIR 1, 2, 3 doesn't matter. Those interviews are good. They inspire some people that देखो ये बंदा AIR 1 आया है. But when you talk about the depth of the subject, वो subject के अंदर नहीं जाते हैं and they are not transformative. एक genuine student जो जानना चाह रहे हैं ना कि मैं AFM subject कैसे पढूं, कैसे prepare करूं, कैसे uplift करूं, तो वो आंसर उसको नहीं मिलता है. अगर पेपर टफ आया तो क्या करेंगे, पेपर इजी आ गया तो क्या करेंगे, they don't get the reply to it. This message is what Keshav sent me this afternoon. And he said that, sir, I think I can contribute in that regard. And when I read the message, believe me, it holds something. अगर आप genuinely सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनिएगा. This is not marketing, this is nothing else, this is genuine. AFM कैसे prepare किया जाता है, but somebody who has really experienced the subject and he will share this out. This needs to be listened with full honesty. And of course, I forgot, Keshav, congratulations for AIR 5. वो congratulations वाला part मैं भूल ही गया in terms of the subject का focus. Please, now it's all yours. Take them through the entire whatever strategy you have to crack AFM in the brilliant mode. Thank you, sir. And I mean, no worries on that because we have to cut out on the fluff and let's get to the meat of it, or the meal of it rather, for the vegetarians. Okay, so sir, basically the matter of the fact is that I am not a student who has been very academically oriented throughout my journey so far. This is the first AIR that I have gotten, and it's not been an effortless journey. You know, it's been very systematic, very research oriented preparation, where I have given my utmost to align the learning approach with what the science says. So starting right from how learning works. Let's speak in Hindi if you don't mind. अच्छा, okay, sure. तो लर्निंग के ना सर 3 स्टेजेस हो जाते हैं. पहला हो जाता है कि आप जो लेक्चर देखने वाले हैं, वो लेक्चर देखने के पहले यू हैव टू प्राइम योर ब्रेन सो दैट योर ब्रेन इज वेरी अटेंटिव एज द इंफॉर्मेशन इज कमिंग. बिकॉज जो अटेंशन से लेके प्रोसेसिंग का स्टेज है, वो स्टेज के बीच में इंफॉर्मेशन ऑफन गेट्स लॉस्ट. सो व्हाट द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर वाचिंग लेक्चर्स is that you have to prime yourself, and that begins even before the lecture starts. What you have to do is, so I think especially in Sanjay sir's recorded lectures, we have this wonderful things where he shares the notes of the class. And I used to go through the notes and I'm just seeing it. I don't have any context. I don't have any, previous knowledge. I'm just understanding that, okay, what is going to come in this class? I'm getting a rough idea of it. And then I'm drawing a small mind map sort of thing, just scribbling it out in a notebook. This is helping me prime, and I'm going to be attentive for the things I found which were important in the notes. They're just words so far, nothing more, but I just know what to watch out for. And there's a broad stroke structure which is in my head. This is going to help me if my attention flickers away for a bit, to know that what's important and how do I catch it. It's like building a net. So मैं अपने शब्द में बता रहा हूँ, बहुत सही बोला आपने. What you have said is that usually student क्या होता है ना, सीए का typical student, वो पूरा ये रहता है कि नहीं यार जो है क्लास में करवा दो मेरे को. I think मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि you have to sit on the driving seat. The teacher cannot make you reach the destination. Okay, तो you are very correct. You are saying that एक बार स्टीयरिंग पे बैठ जाओ ना, थोड़ा सा घुमा लो स्टीयरिंग को. ओके, सब कुछ कर लो, थोड़ा बहुत तुमको पता है थोड़ा सा बेटर फील होगा इफ यू डू ऑल दैट. यू आर नॉट ड्राइविंग द कार, ही विल शो इट टू यू, बट टेस्ट इट आउट, इट विल बी बेटर. तो वो बोलना चाह रहे हैं कि पहले से ही आप जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए. ओके, यस वेरी गुड. इट्स हैपनिंग ग्लोबली ऐसा ही होता है. And sir, like the point you said about students wanting the faculties to do everything, even I did a Q&A session on Reddit, and someone asked me that what faculties you have taken, and I asked, how does that matter?
like I mentioned all the faculties, but I said that you're focusing so much, and I mentioned the word spoon feeding over there, and I got downvoted into oblivion Yeah, yeah. because they don't want to hear it. But you But it's don't, but you don't, but you don't have to worry over here. अपने जो yeah, बोल रहे हैं खुला बोलना है, खुला. खुला ठीक है, खुला because सर. yeah, हाँ, because at the end of the day मैं तो पहला बात तो मानता ही नहीं है कि कोई मीडियोकर स्टूडेंट होता है, कोई एबव एवरेज होता है. मेरे को yeah, लगता है कि हर एक जन का एस्पिरेशन तो होना चाहिए एबव एवरेज लाइफ अटेन करने का. अगर वो अपने correct. रिकंसाइल कर लेंगे, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को एवरेज समझ में आता है, मेरे को लाइफ में एवरेज चाहिए. आई डोंट थिंक वी आर एक्चुअली स्पीकिंग आउट फॉर दैट मेंटालिटी. वी आर स्पीकिंग आउट फॉर दोज who may be weak. मेरे को नंबर क्रंचिंग कम है, मेरा कैलसी का स्किल्स कम है, मेरे से कैलकुलेशन कम होता है. इट्स ओके, बट यू जस्ट हैव द पैशन टू मेक इट रियली बिग. ओके, सो दैट इज जस्ट यू. कंटिन्यू प्लीज. So we spoke about priming. This is one of the three learning stages. So priming के बाद जो second stage आता है, that is encoding. Encoding is really where you are processing the information and you are storing it into your memory. So it's like जो file है, वो अभी जो teacher है, that is the pen drive, वो आपने डाल दिया है and अभी आपको फाइल को कॉपी करके आपके स्टोरेज में आपको फीड करना है. ये स्टेज में व्हाट सो द फर्स्ट थिंग इज लाइक आपने पहले जो आपका प्राइमिंग करके आपने नेट बना दिया, दैट इज वेरी गुड कि आप अभी जो बॉल आएगा आप पकड़ पाओगे उसके अंदर. बट यहाँ पे आपको इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज द क्लास इज गोइंग ऑन यू हैव योर फुल फोकस ऑन इट. एंड आई थिंक सर के क्लासेस में स्पेशली व्हाई इट्स वेरी गुड इज एनकोडिंग के अंदर वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स एनकोडिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वालिटी बना देता है उसका, वो ये होता है जब वो एनकोडिंग को हम इलेबोरेटिव बनाते हैं. इलेबोरेटिव एनकोडिंग मतलब कि अगर मेरे को x याद रखना है तो मेरे को x प्लस 20% में जाना चाहिए ताकि मेरे को x रिटेन होगा एंड वो x बहुत स्ट्रांग बनेगा. So you should always try to go a little bit beyond the scope of just what is being there in the textbook. And because you are elaborating and going deeper into it, and I mean, finance is so beautiful. And जो financial engineers है, उन्हें really इस तरह से ये चीज के अंदर बनाया है. I mean, it's completely made by us. It's not a discovery. It's something humans have invented. तो उसके अंदर जाओ and you will, I mean, fall in love with the thing more. एंड लाइक आईसीआई के जो फिनेंस है उससे बाहर जाओगे तो और भी मजा आएगा. सो So यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा, you are from Mumbai. या So there was a student of mine who was studying SFM way back in 2016. Okay, by the name of Tarang Agarwal. Okay, and he is right now a fund manager at Old Bridge Capital. Okay, Old Bridge Capital. 34 years old he is. Okay, one of the youngest fund managers who became like this way. तो आज सुबह उससे पॉडकास्ट हो रहा था. ठीक है, तो he was using the same language as you are. ठीक है, but the only difference is that when he joined SFM and he saw the थोड़ा सा posh माने lack of organizational structure जो CA Institute ने कर रखा है, so he could not suffer the same and he like me dropped out of CA and just ventured into fund management and CFA and all that stuff. But I'm happy that you completed the same. We know ये पैशनेस है and all that है, तो अपने बात कर रहे हैं, but it's like CA का journey tells you how do you actually suffer all the inefficiencies and still optimize. Okay, that is या yeah. And सो इट्स लाइक कि रास्ता खराब है तो क्या अपन अपना सस्पेंशन अच्छा बना सकते हैं. correct, correct. या सो सो एनकोडिंग के स्टेज पे अगर बात करें तो आपको पहले तो चीज है समथिंग व्हिच इज कॉल्ड इलैबोरेटिव एनकोडिंग. दूसरा चीज जो सर मैं करता था ना वो है कि जैसे लेक्चर चल रहा है आई डिड नॉट गिव माई सेल्फ द लग्जरी कि वो लेक्चर चलते चलते मैं नोट टेकिंग कर रहा हूँ. एंड what I force myself to do is that जैसे जैसे लेक्चर चल रहा है I have to understand it and I have to make that structure within my mind. And फिर वो जैसे लेक्चर एंड होगा then I have to make the notes. So what that did is it put my mind under pressure कि if you miss it, it's gone. In a true sense, it was never gone because आपने notes share किए हुए थे anyways. So if I miss it, like I can go and do it, but it's like मैंने वो situation create किया where my brain has to work. And that is the essence of learning, that your brain learns under cognitive load. तो आप अपने जो बोलते हैं ना दिमाग पे जोर डालो, तो आप जब तक दिमाग पे जोर डालोगे नहीं तब तक होगा नहीं. और हर बच्चा क्या करना चाहता है ना, वो आउटसोर्स करना चाहता है कि मैं दिमाग पे जोर नहीं लूं, मेरे को जैसे हो सके सिंपल से सिंपल बना के दो ताकि मेरे को दिमाग पे जोर नहीं आए.
बट बात ये है कि वो बहुत सिंपल चीज रहेगा ना, इट विल जस्ट फ्लाई बाय यू, यू माइट अंडरस्टैंड इट बट इट्स नॉट गोइंग टू बी रिटेन्ड बिकॉज योर ब्रेन फील्स दैट दिस इज सो सिंपल, ये मैं कभी फिर से भी समझ सकता हूँ. When your brain really has to struggle to या grasp. फिर वो घुमा के आ जाता है एग्जाम में वही चीज, तो उस केस पर ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है. वो भी हो जाता है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो एनकोडिंग के टाइम पे हमने ये दो चीजों के बारे में डेफिनेटली बात किया सर. अनदर थिंग which really helps to solidify the encoding, it's called the Feynman technique. So Richard Feynman used to use it. Richard Feynman, if people are not aware, he's called the most brilliant teacher of physics ever. He's a Nobel Prize winner. He was in the uh, um, Manhattan Project and probably more famously the Oppenheimer movie. So Richard Feynman, he spoke about this technique where if you want to learn something, try teaching it and try to teach it in a manner that you're making it as simple as possible. So हर किसी को ना आज के डेट में वी हैव दिस एडवांटेज कि हर किसी को एक स्टूडेंट तो नहीं मिल जाएगा जिसको बैठ के सिखाने का ट्राई कर सकते हैं. बट व्हाट यू कैन जस्ट डू इज पिक एनी कटिंग एज एआई मॉडल व्हिच इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ योर चॉइस. उसको बोलो दैट यू नो गिव इट अ कंटेक्स्ट दैट यू आर अ 16-year-old child who does not have any knowledge of this and I am going to record your audio in that and audio से उसमें input दो. I think chat GPT का for Indian accents is quite good when you dictate and उसके अंदर just start speaking and start explaining the whole thing and then ask it whether it has understood and then ask it to switch states from a person who has no knowledge to a person who is an expert in the field and tell you whether you have explained it correctly or not. And in this way, through first you are trying the Feynman technique and then you are getting immediate feedback on it, you will find that your knowledge becomes absolutely solid. समझ गए. तो यू आर सेइंग दैट पहले आपने रोल प्ले में जीपीटी को बोला कि यू एक्ट एज समबडी हु डज नॉट नो अबाउट द सब्जेक्ट एट ऑल एंड यू आर द वन हु आर गोइंग टू टीच इट. ठीक है ना, वो अब्सॉर्ब करेगा. यू मे इवन आस्क इट टू रैंक यू ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, भाई तेरे को समझ में आया कि नहीं आया. उसके बाद बेस्ड ऑन दैट एंड गिवन दैट जीपीटी इज जीपीटी, तो इन दैट केस यू आस्क इट टू स्विच द रोल एंड देन जहां पे भी लूप होल्स थे उसको प्लग करके पूरा अपना फाइटिंग करके बता दो. करेक्ट. तो इन दैट केस यू आर गेटिंग अ फ्रेंड who's 1 second becoming a guide. Yeah. So this is something which I did for some of the bigger topics where जहाँ पे really जरूरत था. For every topic it becomes a lot cumbersome, but जहाँ पे if you are finding कि यार ये topic मेरे को comfort ही नहीं आ रहा है, इसमें मेरे को अगर grip ही नहीं आ रहा है, so go ahead and do this. So this is like an advanced level technique to get a grip on concepts which you feel I am not able to do this well. तो 3 स्टेप बोला. पहला बोला प्राइमिंग, सेकंड बोला इनकोडिंग और थर्ड बोला थर्ड आएगा सर recall. So we've not gone to recall yet. We are just talking about encoding and all the different techniques in encoding. Okay. So for priming, the technique that we spoke about is really just like going through the notes and making a structure. So it's just one technique. Priming is very simple. It takes 2 minutes and most students ignore it. And even after saying it, I think probably most students won't be able to do it. They'll ignore it, yeah. But जो करेगा, I can guarantee कि सिर्फ प्राइमिंग भी अच्छे से किया ना उसने, he will see the difference. नहीं बहुत इजी बोल रहे हैं, इम्प्लीमेंटेबल है. पहला बात है क्लास के पहले ही जान जाओ क्या कराने वाले. यस. सेकंड बोल रहे हो कि ये अपना माइंड को ओपन रखो कि मेरे को एक्स्ट्रा करके जाना है बिकॉज एग्जाम में कौन सा पेपर इजी आएगा कौन सा नहीं आएगा इनको पेपर वाइज ही बताएगा. इसको पता है ज्यादा आ गया तो टफ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके जाओ. और उसके अंदर ही तुमने बोला कि भाई तुम टीच करो, तो टीच या तो फ्रेंड मिलेगा नहीं, बेटर है तुम जीपीटी में टीच करो, एआई को टीच करो और टीच करके उसका रोल प्ले कराओ. एकदम ठीक है. चलो आगे. Then the other thing that I did for this, encoding. We are still in encoding. Yeah. Some of the very complex formulas, जैसे शार्प का ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हो गया, ब्लैक शोल्स हो गया, उसके अंदर आपने क्लास में भी यू सेड कि यू नो दैट इट इज नॉट वर्थ द टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स टू रियली गो इनटू द लॉजिक ऑफ इट, क्योंकि वो बच्चा नहीं समझ पाएगा. You are talking about Sharp's optimization approach, C star. Yeah. हाँ ठीक है okay. So C star and Black-Scholes model का we don't go into कि यार वो कैसे derive हुआ है, we don't go into that, right? Because वो उसका point नहीं है in the classes. But मेरे को formula याद नहीं होता, खाली ऐसे ही रट्टा मार के नहीं होता मेरे से, मेरे को नहीं जमता वो. So I'm like मेरे को अभी इसका intuition समझना है.
तो मैंने जीपीटी के साथ एक और थ्रेड शुरू किया, एंड आई एम हाँ, लाइक, नाउ यू हैव टू गिव मी द इंट्यूशन फॉर दीज टू थिंग्स, ठीक है। एंड आई गॉट द इंट्यूशन फॉर दीज टू थिंग्स, एंड वो उसके वजह से सर शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मेरा प्रिपेयर्ड था, हम्म, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड. wonderful. So In fact, the entire community has been complaining about वो जो ट्रायंगुलर आर्बिट्राज का क्वेश्चन आ गया था ना बिडास को लेके, वो क्यों आ गया? ठीक है, जबकि इफ यू रिमेम्बर अपने क्लास में उसको कैलसी पे करते थे, 2 मिनट 2 सेकंड में करेक्ट कैलसी करेक्ट. पे, डॉलर से पाउंड बेचे, पाउंड से यूरो बेचे, यूरो से डॉलर आए, यू आर यूज्ड टू आंसर। ठीक या है। आई थिंक फॉरेक्स के अंदर ही मेरे बैच में सर आपने वो एक क्वेश्चन दिया था, एंड यू सेड कि ये क्वेश्चन पे अगर ग्रिप आ गया ना, तो मतलब आपको बिड आस्क कवर हो गया. है। सो और उसके बाद जो शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन है, उसमें ऑब्वियसली मतलब वो कितने साल पहले आया हुआ है, तो पीपल फील दैट जो बहुत साल पहले आया हुआ है अब तो वो गया सी कैटेगरी वॉटेवर में, तो ऐसे होता नहीं है। यू आर गोइंग टू अपियर फॉर एग्जाम ओनली वंस, यू गॉट टू डू ऑल दैट। या करेक्ट. आई थिंक सर ये इसमें ना आई वुड लाइक टू ऐड सर, ये जो एबीसी एनालिसिस वाला ट्रेंड बहुत ज्यादा में जो बढ़ गया है ना, दिस इज अ really really bad approach that a lot of students are taking. Like it's really gambling with their attempt. बट इट मे बी वर्किंग फॉर देम। We saw in this attempt how it worked. ओके, तो समझ बिकॉज सर एबीसी एनालिसिस करके गया। क्या, एबीसी एनालिसिस का चलो सर ये पॉइंट तक समझता है कि सी कैटेगरी के अंदर जो मैंने क्वेश्चन अगर डाले हैं, हाँ। so if I've done ABC on the basis of difficulty, then it's fine. If I'm trying to do ABC on the basis of probability of coming in the exam, then it's not fine. सो मैं बता रहा हूँ फाइनेंस में क्या होता है। when any wealth manager will come to you ना, एक वेल्थ मैनेजर आया आपके पास और वो बता रहा है कि ये पर्टिकुलर फंड है, बढ़िया है, इस पे इन्वेस्ट कर दो, तो वो सिंपल क्या करता है, वो लोग पास्ट का रिटर्न्स दिखाते हैं, और पास्ट का रिटर्न्स दिखा के उसके बेस से बोलता है देखिए अभी लास्ट 3 साल में क्या परफॉर्मेंस है, ये वो बेंचमार्क को बीट किया है। I think when you're talking about probability, it gets down to that stuff. Ki we are looking at the frequency of it in the past, Correct. and it is really a shame on the part of the CA Institute. I would say that they set papers in such a manner that such gaming is respected and such gaming becomes dignified. Because Yeah. examination should be such that people should not be able to game the exam at all. कि ये ज्यादा आता है, ये कम आता है, वगैरह वगैरह। हमारे CFA में होता है, you are not allowed to speak about the paper. पेपर ले जाना तो दूर की बात है, आप जो क्वेश्चन आया था उसकी बात भी नहीं कर सकते हो किसी से। That is considered to be unethical, for which you could be violated and out of the CF program. I think उसका रीजन एक ही होता है, because once you don't study 100% with the same sincerity, so in that case what is the purpose of the study? It is gone now. सर सीएफए के अंदर तो लास्ट में जो अपियर कर रहा है एग्जाम से उससे फीडबैक भी मानते हैं कि आपको पेपर में कुछ मिस्टेक नोटिस हुआ तो बताओ, तो वो तो सर अलग ही लेवल की हम बात कर रहे हैं. Yeah. So I don't think अपने को ABC का ज्यादा बात करना चाहिए. A lot of controversy has taken place. Let's drop it. Let's talk drop आगे. it. Yeah. अपन जो बात कर रहे हैं सर, आई थिंक दैट अलोन इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इनफ वैल्यू, सो लेट्स नॉट गेट इनटू एबीसी एंड ऑल. अभी अपन ने आई थिंक एनकोडिंग के लिए आई हैव प्रोवाइडेड सफिशिएंट टूल्स फॉर स्टूडेंट्स टू रियली डू इट, एंड मेरे को लगता है ना सर ये टूल्स वाला जो अप्रोच है ना, ये कोई स्टूडेंट समझेगा ना तो वो बहुत अच्छा है. बिकॉज लाइक देयर इज दिस एनालॉजी आई वाज जस्ट थिंकिंग टुडे, एंड दिस एनालॉजी व्हाट अकर्ड टू मी इज कि there is a nail, and this nail is something you're trying to learn and you're trying to hammer it into the wall. Now what a ranker or a highly intelligent student has is he has an iron fist, and he's taking the nail and he's pounding it and it's going into the wall. जो एवरेज स्टूडेंट है उसका फ्लैश एंड बोन का हाथ है, उसको ये ले रहा है एंड उस पे पमल करते जा रहा है, पमल करते जा रहे, नहीं हो रहा है, एंड दुनिया से पूछ रहा है यार मैं क्या करूं क्या करूं. सब लोग कुछ भी तरह का बोल रहे हैं, बट मैक्सिमम जो बोल रहे हैं कि यार ट्राई हार्डर, तो वो उससे नहीं होने वाला. बट द ब्यूटीफुल थिंग इज because we are humans and because we have this ingenuity about us, we invented the hammer, and with the hammer you can just pound it in. Correct. So what is a hammer but a tool? A tool. Yeah. Yeah. So not everyone can have an iron fist, but everyone can use a hammer. Wonderful. So
आई थिंक एनकोडिंग के अंदर ये जो टूल्स है, आई वुड रियली एनकरेज कि तो स्टूडेंट्स। एनकोडिंग के अंदर मैं समराइज कर रहा हूँ, पहला तो था प्राइवेट, पहला था कि आप 20% एक्स्ट्रा कर लो, ठीक है, करेक्ट, बी प्रिपेयर्ड मेंटली। जिसको सेकंड था, इलास्टिक एनकोडिंग बोलते हैं, या हाँ, उसके बाद आपका था कि उसको टीच करो, ठीक है, इम्प्लीमेंट जीपीटी टेक्निक। को, उसके बाद उसको बोलो कि उसको फिल इन द ब्लैंक गैप्स करे। और हाँ, थर्ड आपने जो बोला वो क्या था एनकोडिंग के अंदर? थर्ड तो मैंने जस्ट एक और एग्जांपल दिया दैट हाउ आई एम यूजिंग एआई टू डेवलप इंट्यूशन फॉर थिंग्स व्हिच ओ, आर। मैंने जहां जहां फॉर्मूलाज वैसे थे, से हाँ, सी स्टार वगैरह का, आपने या उससे इंट्यूशन मांगा, करेक्ट, ठीक है, या सही। या अभी इसके अंदर ना सर मैं थोड़ा और एक लेवल डीप डाइव करना चाहूंगा। हम्म एंड मतलब लाइक मैं अब जैसे बता रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन लाइक द रिसर्च आई हैव डन, दिस इज लाइक barely स्क्रैचिंग द सरफेस। हम्म बट थोड़ा एक और लेवल आगे फॉर द स्टूडेंट जो रियली समझना चाहता है व्हाट इज हैपनिंग इज, हम्म जो कोई नॉलेज होता है ना, लाइक स्पेशली लाइक कोई भी एकेडमिया के अंदर वट एवर यू आर लर्निंग, यू कैन डिवाइड इट इनटू थ्री कैटेगरीज। हम्म One, based on the nature of what that content is. One is facts. हम्म Facts are things which by their nature require memorization हम्म because it's a piece of information. हम्म One is a concept. A हम्म concept is a relation between facts. हम्म सो जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत सारे फैक्ट्स और उनके बीच का रिलेशनशिप्स एंड हाउ इट वर्क्स, वो हम्म होगा। या तो इट लाइक सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, इट्स बिटवीन 2 to 3 फैक्ट्स, उसका कैसा रिलेशनशिप है। हम्म एंड कॉन्सेप्ट्स आर मेंट टू बी अंडरस्टूड। हम्म एंड द थर्ड थिंग इज प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स हो गए विच आर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच नीड टू बी फॉलोड इन ऑर्डर। हम्म तो लोग क्या मिस्टेक करते हैं ना, कि वो लोग एएफएम को फैक्चुअली एंड प्रोसीजरली लर्न करने जाते हैं। हम्म तो वो देखते हैं कि एएफएम में फॉर्मूलाज वगैरह को हम लोग फैक्ट्स जैसे लर्न कर लेते हैं। हम्म एंड वो लोग देखते हैं कि एएफएम के जो जितने भी अलग तरह के क्वेश्चन है, उसको रादर देन थिंकिंग कि इसका रिलेशनशिप्स क्या है, कि लाइक मेरे को एक्स से वाई जाना है तो मैं अपना पाथ खुद ड्रॉ कर सकता हूँ, उसकी जगह किसी ने, एक जीपीटी ने, मतलब गूगल मैप्स ने मेरे को स्टेप्स दे दिए हैं, मैं वो डायरेक्शंस रट लेता हूँ, हम्म you know. So they go procedurally or हम्म and they go factually, and हम्म then AFM becomes such a subject which they rant about and they feel कि यार Yeah, इसके it also becomes messy in the head because there is a huge load that you are carrying on your head. बाप रे, ये याद रखना, इतने formulas है, ये है, एग्जैक्ट। प्रोसेस याद रखना है, correct. एंड मैं थोड़ा लाइक बिकॉज आई सीन ऑल द सब्जेक्ट्स ना सर, मैं अगर कंटेक्स्ट दूं ना, तो ये कहाँ से आ रहा है ना, ये लोगों को एफआर से आदत आता है। हम्म क्योंकि जब वो लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, अकाउंट्स के अंदर हाउ द सम्स आर मेड, हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड इज, कि एक सम का ना एक टिपिकल टाइप होता है। हम्म कि ये जैसे अगर एक फाइन लाइक फाउंडेशन वगैरह से लोग दे रहे हैं, लाइक फाइनल अकाउंट्स का एक सम होता है उसमें। कंसोलिडेशन ले लो ना। हाँ चलो, कंसोलिडेशन लाइक, हाँ राइट, कंसोलिडेशन, हम्म कंसोलिडेशन का एक सम का एक सेट प्रोसीजर होता है। एंड उसके अंदर जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हम्म एडजस्टमेंट्स में खेलते हैं, हम्म राइट। बट एएफएम इज नॉट द सेम वे बिकॉज एएफएम के अंदर क्वेश्चंस आर डिफरेंट एंड देयर आर हम्म so मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस। हम्म These procedures are not same. Every question has a unique procedure in order to solve it. हम्म तो जब आप एएफएम को, अगर आप लाइक यू ओनली टेक फॉरेक्स, यू ओनली टेक डेरिवेटिव्स, उसके अंदर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव एंड वैरायटी। यू कांट गो बाय इट प्रोसीजरली। हम्म सो वो आदत जो आपने कोई दूसरे सब्जेक्ट के अंदर डेवलप किया है, वो आप हम्म यहाँ पे लाके कैरी ओवर करने का कोशिश कर रहे हो, दिस इज हम्म नॉट द वे टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। करेक्ट। मेरे को ये अब जब आप बोले हो तो ये समझ में आता है कि in a few areas in AFM, few areas नहीं, few sections in AFM, जहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूट के बहुत ही बंद जाते हैं ना, कि यार हाँ, इन्होंने ऐसे में ऐसा किया है, वैसे में वैसा किया है, वहां पे आई ऑल्सो स्टार्ट डिक्टेटिंग टाइप वन सम, टाइप हाँ, टू सम, टाइप थ्री, बट आई थिंक आई मस्ट हैव डन इट इन मे बी 5% ऑफ द एंटायर करिकुलम, कि जहाँ पे करेक्ट, मैंने टाइप वन टाइप टू किया होगा। तो तुम जो करेक्ट। बोलना चाह रहे हो इज दैट सर, ये जो टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री है, ये एफआर में भर भर के, इज इट व्हाट यू आर इम्प्लाइंग? यस यस, बिकॉज एफआर के अंदर जैसे एक हो गया कि ये इस तरह से जर्नल एंट्रीज पूछ लेंगे, ये इस तरह से कंसोलिडेशन का सम का फ्लो होगा, इस तरह से बिजनेस कॉम्बिनेशन के सम का फ्लो होगा। तो मतलब मैंने एफआर तो जब किया था ना सर, जो लार्ज लार्ज सम्स है जो 6, 8, 10, 14 मार्क्स के ऐसे हो सकते, ऐसे आई जस्ट मेड अ लिस्ट एंड देयर वर लाइक सर 20-24 different types of questions that I have to cover, and उसके अंदर there are a lot of adjustments
but there are 20 to 24 different types of questions with completely unique sets of procedures. सो एडजस्टमेंट के लिए आपको पूरा नया प्रोसीजर नहीं याद करना पड़ता है, आपको एक आधा चीज चेंज करना पड़ता है। एएफएम के अंदर आप बनाने जाओ लिस्ट, मैंने तो ट्राई नहीं किया, मेरे में हिम्मत नहीं थी, बट आप बनाने जाओ लिस्ट एंड आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप प्रोसीजरली जब करने जा रहे हो, हाउ बिग ऑफ अ मिस्टेक यू आर मेकिंग। एंड इवन इन फॉर्मूला सर, फॉर्मूलाज अलोन आप उसको अगर फैक्चुअली करने जा रहे हो, मतलब सर लोग अगर मीन का भी फॉर्मूला रट रहे हैं तो क्या बचा सर, मतलब Summation X by A. Wow, I can't imagine. but some faculties are going by that way and some rankers are suggesting कि यही अप्रोच है और एएफएम को ऐसे ही करो। तो you know, like this is what the like CA students and the community has come down to, which is a very unfortunate reality. But ये दोनों से हमको आना है to concepts. Learn AFM conceptually, and when we say conceptually it means understand the relationship between things. कोई एक sum होता है तो उसका आप logical flow समझो, and how you can do that is through quality encoding, and how you do quality encoding is through the different tips and tools that we have given you. Correct. Good. So I think we are मेरे को हैमर वाला एनालॉजी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आई रियली लाइक्ड इट एंड आई एम जेन्युइनली टेल यू ऑल ऑफ यू, मतलब पता नहीं उतने ही लोग मानते हैं कि आई डू नॉट नो केशव एट ऑल, ठीक है। वी वर स्केड्यूल्ड टू स्टार्ट द इंटरव्यू एट 6 टुडे एंड इट वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट, मेरे से मिस हो गया, वी हैड टू वेट फॉर 20-25 मिनट्स एंड देन वी हैव स्टार्टेड, उस बीच में 2 मिनट बात किए थे, बट द मोस्ट ऑफ द टॉक इज लाइक हैपनिंग फ्रेश। द होल पर्पस वाज कि लोग कितने सफर करते रहते हैं वो अपने हाथ को कील पे मार मार के, ठीक है। अगर एक बार ठीक से सोचे चीज के कि पढ़ने का तरीका कैसे है, तो इट वुड हेल्प देम और इट विल डू वंडर्स टू देयर एंटायर दिस थिंग। तो आई रियली विश दैट काश आपको कुछ ना कुछ टेक अवे से समझ में आया हो, कुछ कॉन्क्रीट टेक अवेज था, एआई को यूज करो और कैसे यूज करो उसने एग्जांपल दिया और वो ऑफ द टॉक किया है, ठीक है। पेपर टफ था, ही स्कोर्ड हाउ मच हैव ही स्कोर्ड एएफएम में? 83 सर। 83 and why do you think 17 marks कहाँ चले गए? नॉट श्योर, मैंने एनालिसिस नहीं किया, बट आई थिंक ये टाइम ओवरऑल ही काफी मार्क्स कम आए हैं। सो एएफएम इज द सब्जेक्ट इन विच आई हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट। ये टाइम ओवरऑल ही सर जो मार्क्स आए हैं, मैंने एआईआर 1 का भी नहीं देखा कि 90s में पहुंचा है एएफएम में। So maybe the checking or something it has gone in this way. Even AIR 5 has come at 445 marks, which is quite low. इतना नीचे नहीं आता है। तो इसका मतलब कई सारे लोग तो एएफएम में फेल किए होंगे 40 के नीचे। Yes sir, AFM में this time the result has been very very poor, and most people were complaining about AFM. Yeah, tell me something. I'm just telling you that मेरा इस बार जो विचार है ना एएफएम कराने का, मैंने वो क्या विचार है पता नहीं, अगर तुम याद करोगे when I used to teach, मेरा मैं जब क्वेश्चन कोई पकड़ता था ना, तो उस समय क्वेश्चन को खोद के पूरा का पूरा डिस्कस कर जाता था। उसके बाद बोरिंग पार्ट चालू होता था, कौन सा? चलो लिखाते हैं। The main part used to happen when we used to discuss the flow of the sum, है ना? तो अभी जब मैं क्वेश्चंस पकड़ूंगा इस बैच में, तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन सोचा हूँ कि उसको मैंने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको केस स्टडी बेस्ड पे कराऊंगा, ठीक है। while at the same time जो elaborated solution है लिखाया हुआ वो दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट्स को, to just understand it। अगर ये केस स्टडी में आता है तो that's the thought process, और इसको सजा के करना है तो कैसे करना है, ओके। that is the way in which I thought, because उससे क्या होता है, रिदम स्पॉइल नहीं होता है थॉट प्रोसेस का, लिखाने में वो रिदम स्पॉइल हो जाता है if you dictate the question का solution, is what I thought. I think that's very good for conceptual learning, and इससे आई थिंक लाइक एक बार अपन ना स्टूडेंट्स के लास्ट में समराइज करते हैं। आई थिंक वी लेफ्ट आउट एनकोडिंग में वन टूल जो मैंने मेंशन किया था कि लाइक इन रिकैपिंग इट वी मिस्ड आउट ऑन दैट पार्ट कि आई डिड नॉट make notes because even making notes during the lectures was a distraction. So the idea is to make cognitive load a thing. तो आप cognitive load लाने के लिए you have to just try कि you know like I want my brain to work and make the structure as the teaching is happening, and उसके बाद में when the lecture is completing my brain has the challenge कि वो lecture को recall करके पूरा उसको note down करना है। So like to just summarize पूरा का पूरा encoding,
The first tip the first tool is, because these are not like mere tips, these are proper tools. The first tool for you is you have to do elaborative encoding, मतलब extra जाके करो, उसके और depth में जाओ. The second tool for you is that you have to use cognitive load, which means अपने दिमाग पे जोर डालो. उसके लिए मैंने एक तरीका भी जो है वो डिस्क्राइब किया. द थर्ड टूल इज यूज द फाइनमेंट टेक्निक, मतलब सिखाना, एंड यू कैन यूज एआई फॉर दिस. द फोर्थ tool is कि use AI to develop intuition for the hard, like the hard formulas and or The the more very, complex stuff, yeah. yeah. तो ये चारों चीज को अगर यूज किया किसने, आई थिंक एनकोडिंग दे बी एबल टू डू वेरी स्ट्रांगली. Perfect. See, I am sure that there would be a certain small percentage of the audience who will definitely use some of the stuff. और ऐसे भी क्या होता है, even learning, understanding is a very subjective and I would say customized affair. कोई कैसे एब्सोल्युटली समझता है ना, वो उसके अपने थॉट प्रोसेस और ग्रूमिंग पे डिपेंडेंट है. तो मेरे करेक्ट. को लगता है कि ठीक है, you have given some views, but the idea of the best way of studying, okay, is something that one has to explore for oneself. But अगर कोई open mind से सुना होगा, तो definitely he or she can improve their way of studying. And why only AFM? In fact, other subjects reflect upon it and study smartly in this present world of AI, in which you can do wonders. You're not left. In fact, remember, I don't know, 23 में जब मेरा लाइव बैच चल रहा था, तो मेरा एक YouTube वीडियो आया था जहां मैंने बोला था, अब टीचिंग गया तेल लेने. I really meant that. मैंने, if you ask me genuinely, अभी ट्यूशंस का किसी भी चीज में, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएफए हो, चाहे एफआरएम हो, उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. और खासकर उस जैसे ट्यूशन का जहाँ पे से सीएफए में लोग केवल वो पीपीटी चला देंगे और पीपीटी के हेल्प से पढ़ाएंगे. व्हाई वुड यू गो फॉर सच ट्यूशन? और सीए राइट. में अगर केवल सम्स पे सम्स करा देंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आई थिंक वो दोनों टाइप के टीचिंग का तो कोई स्थान नहीं है. फिर हमारे टाइप के टीचिंग का भी आई डाउट इट. वी रियली, मतलब सीए में तो क्या लिमिटेड स्कोप मिलता है, बिकॉज इफ वी शेयर टू मच ऑफ रियल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या एप्लीकेशन है, द टाइम डज नॉट परमिट. बट सीएफए में वी आर ट्राइंग टू सैल्वेज समहाउ बाय डूइंग दैट अ लॉट, कि हर चीज का एप्लीकेशन रियल लाइफ में कराने वाली. ठीक है. I know you had also messaged me regarding your career profiling, key, what do you do, but that is something personal. So I think we engage in a discussion separately, bilaterally. Okay. And on behalf of all the viewers who are watching or who would watch in future, thanks a lot to you. Okay. You'll get a lot of LinkedIn requests. Okay. On your this thing. Ki, सर आई थिंक yeah. रिकॉल वाला वी लेफ्ट आउट. Oh, yeah. Sorry, तीसरा step था. One was हाँ. priming, the second was encoding, third was recall. Yeah, please. या या सो recall मतलब basically what I used to do is there is something called forgetting curves. एंड फॉरगेटिंग कर्व्स जो बोलते हैं बेसिकली वो ये बताते हैं कि आपने कोई चीज को सीख लिया, समझ लिया, अगर आपने उसको स्ट्रांगली भी अच्छे से भी समझा तो भी आपको एक डिग्री ऑफ टाइम तक याद रहेगा. बट अनलेस आप वो चीज को इन द राइट फ्रेम ऑफ टाइम फिर से रिफ्रेश नहीं करोगे, किधर अप्लाई नहीं करोगे, तो योर ब्रेन विल डिलीट इट. And this is a feature, it's not a bug, it's an evolutionary feature, because otherwise your brain gets crowded with a lot of useless information. So your brain is filtering that I will keep information which is useful. And how it sort of works is like the general pattern होता है कि 1 day, 4 days, 7 days, and then 21 days, and then 30 days. And 30 days के बाद then आप तो उसके बाद फिर बहुत ज्यादा टाइम के बाद कर सकते हो. If you've learned the thing really really well, तो आप इसको बहुत stretch भी कर सकते हो. बट द एडवांटेज इज दैट इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ 1:20 रेशियो एडवांटेज, कि आपने जो 20 घंटे डाल के चीज सीखा है वो आप 1 घंटे के अंदर उसको पूरा वापस से ला सकते हो. सो दिस इज द पावर ऑफ लाइक रिकॉलिंग. नाउ हाउ आई यूज्ड टू डू रिकॉल फॉर कॉन्सेप्ट्स इज, मैं उसको मतलब एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लिया, इसको बोलते हैं फ्री रिकॉल, एंड मैंने जस्ट बोल दिया कि अभी पूरा फॉरेक्स चैप्टर मेरे को ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे अपने आप को समझाना है. एंड द मैं वो जब समझा रहा हूँ, आई एम नॉट रियली फोकसिंग ऑन सुंदरता. तो वो जरूरी नहीं है. इनफैक्ट इन सम केसेस मैं तो मतलब क्या लिखा वो मेरे को ही बाद में पढ़ने नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा. ऐसे होगा कि मैं कभी कोई कोई चीज में तो पूरा वर्ड भी नहीं लिखूंगा, मैं बस फर्स्ट लेटर लिखूंगा. द पेन एंड पेपर इज जस्ट अ टूल टू डायरेक्ट माई थॉट, टू चैनल दैट थॉट, बट द ऑब्जेक्टिव इज
to recall and bring to the forefront all of the concepts that I have learned. So जब आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन को आपने बस बुक खोल के पढ़ लिया, उसमें आपका फिर से ये जो कॉग्निटिव लोड का हमने कॉन्सेप्ट बात किया ना सर, वो कॉग्निटिव लोड नहीं आया. तो जब आप उसको वापस बुक को उठा रहे हो ना, डू फ्री रिकॉल, ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लो एंड जस्ट ड्रॉ आउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स. मेरे को सर फॉरेक्स पूरा रिकैप करने में आधा घंटा लगता था, एंड फॉरेक्स अगर मैंने आधे घंटे में कर लिया तो आई थिंक आपको कोई भी दूसरे चैप्टर के लिए उतना टाइम तो नहीं लगेगा. हाँ सही बात है. करेक्ट. तो अगर आपने उतना टाइम देके वो चैप्टर को पूरा का पूरा यू ब्रिंग इट अगेन, सो व्हाट इज बेटर देन दैट. इसलिए मेरे को लास्ट में भी मतलब लोग तो एएफएम जो है लोग स्टार्ट में उठाते हैं, एंड फिर जैसे वो लोग जब रिवीजन के पॉइंट तक आते हैं, जब उनका स्टडी ब्रेक शुरू हो रहा है, इट्स ऑल गॉन. उनको ऐसा लगता है कि हम फिर से ही फर्स्ट टाइम ये सब चीजें देख रहे समझ रहे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप रिकॉलिंग एंड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ फॉरगेटिंग कर्व, कि ये जो चीज है ये अपने ब्रेन का एक फीचर है, कि जो चीज को आप अप्लाई नहीं करोगे वो चले जाने वाला है. तो आपको उसको रिकॉल करना है, बट वो रिकॉल करते टाइम मतलब क्या करना है कि आपको आपके ब्रेन को फिर से दिमाग को जोर में डालना है. जो आराम आराम से चीज होता है वो कभी आपके फायदे में नहीं आने वाला व्हेन इट कम्स टू मेमोरी. जहां पे आपके ब्रेन को जोर लगाना पड़ा, आपका ब्रेन बोलेगा इस पे जोर लगाया मतलब ये जरूरी है, तो इसको याद रखते हैं. दैट इज हाउ यू हैव टू ट्रेन इट. तो Correct बोला है. In fact, when it comes to even physical, this thing, so we talk about strength training. जो करेक्ट. भी strength training नहीं करेगा उसका muscles कुछ बनने वाला ही नहीं है. तो same thing is about the mental brain, कि वो जोर लगाना पड़ेगा. Correct. For any biological system na sir, the theory is use it or lose it. So because biological systems grow under use, and जो मैकेनिकल जो लाइक नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो दे वेयर आउट विथ यूज. बट द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स इज दे ऑलवेज डेवलप एंड बिकम स्ट्रॉन्गर अंडर यूज. Underuse. Correct. या Very good. So I will connect with you separately on discussing your career trajectory ahead. ठीक है. Thanks a lot for sharing your insights, and what I can see is the passion with which you were speaking, and that passion only comes out because you have suffered, you have dealt, you have thought so much about it so deeply, okay, so that it comes out so well. Okay, so I really feel that all the audience who are listening would look at the genuineness of this discussion and be benefited to the extent they can. Thanks a lot. Okay.